A very good morning to all of you. So in previous class we have started a topic, that is classification of the business activities, in which the classification of business activities is according to on the basis of the function. So on the basis of the function, business activities are divided into two broad categories, that is industry and the commerce. Okay, so industry and the commerce, in the then the industry is further divided into three: primary, secondary and the tertiary. In the primary industry, extractive industry and the genetic industry. In the secondary industry, it is manufacturing and the constructive industry. And in the tertiary industry, it is the transport, banking, communication, insurance and the advertising. So in previous class we have completed the primary industry and the secondary industry. Okay, so from today's class we are going to start the tertiary industry. Okay, so in previous class we have studied what is the meaning of this industry and the types of the industry. Okay, so it is of the three: primary, secondary and the tertiary. So in previous class, last class, we have discussed the what is the primary industry and what are the two types of the primary industry, that is extractive and the genetic industry. Then secondary industry is divided into two, that is manufacturing industry and the construction industry. Then manufacturing industries produces two kinds of the product, like consumer goods and the industrial goods. Then the manufacturing industries are divided into following types, that is analytical industry, synthetic industry, processing industry and the assembly industry. Now the next one we have discussed, that is construction industry. So construction industries are deal with the constructions of the building, dams, school, road, etc. Okay, so till here we have discussed in the previous class. So in today's class we are going to start the tertiary or the service industry. Okay, so let's start. Okay, tertiary industry is concerned with the providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. This industry help in the activities of the primary and the secondary industry. In other words, this industry provides services which support the activities of the primary and the secondary industry. That is why it is also known as service industry. Okay, tertiary industry is concerned with the providing services. जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं विच फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके जो क्या कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि स्मूथ फ्लो हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज का, स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ओनली बिकॉज ऑफ द टर्शरी और द सर्विस इंडस्ट्री. सो दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये जो इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें, इन दी एक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी में हेल्प करती हैं. इन अदर वर्ड, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, ये टर्शरी और द सर्विस इंडस्ट्री क्या करती हैं, इट प्रोवाइड द सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करती हैं विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री. जो सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, इसलिए इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. द वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द टर्शरी इंडस्ट्री आर, जो वेरियस सर्विस जो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है वो हैं, फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट. सो इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि जो भी गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द इंडस्ट्री, कि उस क्रेडिट फैसिलिटी की कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, कर सकता है अपने फ़ंड को, अपने मनी को, फंड को थ्रू बैंक क्या कर सकता है, लोन पे ले सकता है. ठीक है, एंड द ट्रेडिंग फर्म प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज़ को क्या करती, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस फैसिलिटी. इट प्रोवाइड द कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ द रिस्क. इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या करती है, जो बहुत टाइप के रिस्क हैं उनको बहुत सारा कवरेज प्रोवाइड करती है. मतलब थ्रू द इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत जो पर्सन है वो बहुत सारे रिस्क से प्रोटेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग. So it provides the storage place for goods.
ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या होती है, जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, बफर स्टॉक, कि वेयर हाउस जहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है उनको वहाँ पे एज अ रिजर्व रखा जाता है। सो दे प्रोवाइड दी स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स, गुड्स के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है विच इज़ प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू दी कंज्यूमर। ठीक है, हम लोग बहुत डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे, या बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर देखते हैं, तो उसमें क्या है, ये सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो भी कंज्यूमर हैं उनको डिफरेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव डिस्कस दी बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। So we have completed the topic that is industry. Now the next one is commerce. Okay, sorry. Commerce refers to all those activity which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Okay, so there will be no use of the producing goods unless and until these goods reach to the ultimate consumer. Goods are produced at one place and consumers are scattered at the different place. So the consumer are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer. Goods are produced in large quantity and demanded by the consumers in small quantity. All these problems, that is hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, are solved by the commerce. Okay, so commerce refers to the all those activities, commerce में वो सारी activities आती हैं which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer, जो directly और indirectly help करती हैं distribution of goods, goods को distribute करने के लिए to the ultimate consumer, to the फाइनल डेस्टिनेशन। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका कोई फाइनल डेस्टिनेशन, तो उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये कॉमर्स की एक्टिविटी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ओके, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दिस गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर, कि इसलिए क्या है, कोई भी यूज़ नहीं है कि गुड्स को प्रोड्यूस करो तब तक जब तक कि ये सारे गुड्स के अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाएं। सिंपल सा थिंग है कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेसमैन कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस क्यों करेगा जब वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे नहीं। सो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स, कोई यूज़ नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करने का अनलेस एंड अनटिल दीज गुड रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर, तो ये गुड्स क्या है, एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते। सो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस, गुड्स क्या होते हैं, एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, एंड द कंज्यूमर आर स्कैटर्ड एट द डिफरेंट प्लेस, और जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट प्लेस पे स्कैटर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, जो क्लोथ है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब एक जगह पे क्या हुआ, ये सारे प्रोड्यूस हो गए, और जो कंज्यूमर हैं वो क्या है, स्कैटर्ड हैं, वो क्या है, डिफरेंट स्टेट में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे वाराणसी, तो ये सब क्या है, सेंटर रीजन में, एमपी में है, तो ये सारे क्या हैं, जो भी कंज्यूमर है वो बहुत स्कैटर्ड है, वो एक प्लेस पे तो है नहीं। तो गुड्स क्या है, वो एक प्लेस पे ही प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दे आर स्कैटर्ड एट द डिफरेंट प्लेस, एंड द कंज्यूमर्स आर द स्कैटर्ड एट द डिफरेंट प्लेस, और जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट प्लेस पे स्कैटर्ड है। So the consumer are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer. तो जो कंज्यूमर है उनको कोई भी ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि किस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप के गुड्स क्या है प्रोड्यूस्ड हुए हैं बाय द मैन्युफैक्चरर। क्या हम बता सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि महाराष्ट्र में या गुजरात में किस काइंड के प्रोडक्ट, किस काइंड के क्लोथ प्रोड्यूस हो रहे हैं? इम्पॉसिबल है। जब तक वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी नहीं तब तक हम नहीं जान सकते कि कौन से किस टाइप के गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और जो डिमांड करते हैं कंज्यूमर वो क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, कि जो भी प्लेस में हिंड्रेंस है, ऑब्स्टिकल है, हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज,
जो नॉलेज से रिलेटेड है प्रॉब्लम, हिंड्रेंस ऑफ द स्टोरेज कि उनको कहाँ पे स्टोर किया जाए, इट एक्सेट्रा आर सॉल्व्ड बाय द कॉमर्स। कॉमर्स के थ्रू क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स, कि क्या ऐसे फंक्शन है कॉमर्स के, मतलब कॉमर्स का क्या रोल है कि वो कैसे गुड्स एंड डिफरेंट गुड्स को क्या है डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी डिफरेंट एरियाज ऑफ दी एनी कंट्री, कि अलग अलग एरिया में कैसे ये गुड्स क्या होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स एज वेल एज रोल ऑफ कॉमर्स, that is trade and auxiliaries to trade. Okay, so functions of commerce और role of commerce, commerce का क्या role है, so it is divided into two, that is trade and auxiliary to trade. Okay, so ये क्या है, दो में divide होता है। so the commerce segment of the business activity is very important, कि जो कॉमर्स सेगमेंट है, जो कॉमर्स है वो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रीज़ से गुड्स क्या हो गए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में गुड्स क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। अब उनको हम मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर कॉमर्स नहीं होगा तो वो सब मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो कोई भी मतलब नहीं है कोई भी हम चाहे जितना भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। सो द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉमर्स सेगमेंट है, जो कॉमर्स इसका पार्ट है बिजनेस एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमर्स इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। जो भी देखिए इंडस्ट्री का ये बैकबोन है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना बैकबोन के जैसे वो कुछ नहीं है, कि आपके पीछे की स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है तो आप क्या सीधे स्ट्रेट खड़े हो सकते हो, नहीं खड़े हो सकते हो। वैसे ही कॉमर्स भी है, अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री में ही आपके पास कॉमर्स ही ना हो, मतलब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप उसको वेयर हाउस में रख नहीं पा रहे हो, आप उसको बैंकिंग फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आप उनको डिफरेंट एरियाज़ में एडवर्टीज़मेंट नहीं कर पा रहे हो, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारे एक्टिविटीज़ अगर नहीं हो रहे हैं सो कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर लो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कोई इसका मतलब नहीं होगा। सो द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ द कॉमर्स। ठीक है, कि कोई भी जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, जो भी इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे तभी पहुंचेगा ओनली बिकॉज ऑफ द कॉमर्स। जब वहाँ पे कॉमर्स नहीं होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जब ये सारी एक्टिविटीज़, जब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, सो गुड्स क्या हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो गुड्स क्या हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो कॉमर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कॉमर्स क्या है, वो बहुत सारे फंक्शंस को फॉलो करता है एज वेल एज परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प इन दी रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। ये क्या है, कॉमर्स क्या हेल्प करता है कि जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है पर्सन की, उनको उससे रिलेटेड हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्रॉब्लम पर्सन, कि ये जो भी हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, इसको रिमूव करता है, इसको हेल्प करता है कि रिमूव कर सके। So, a large variety of goods are produced by a group of person called producer। ठीक है, बहुत सारे large variety goods के क्या होते हैं, produced होते हैं by a group of person, जिनको क्या कहते हैं, producer। producer के थ्रू large variety में बहुत तरह के goods क्या होते हैं, produced होते हैं। So these goods are produced for the another group of a person called consumer। अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसी और अनदर ग्रुप के लिए प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स कौन करता है, प्रोड्यूस करता है बाय अ ग्रुप ऑफ मेंबर, जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और ये गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय दी वेरियस ग्रुप मेंबर्स। वो बहुत सारे मेंबर्स के लिए क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर क्या करते हैं, कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो कोई भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। आप कभी भी कोई शॉप पे जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, तो क्या आप डायरेक्टली उसके प्रोड्यूसर से तो कांटेक्ट नहीं करते हो ना, कि जो उस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, एकदम इम्पॉसिबल है। हम किससे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, हम रिटेलर से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसका जो चेन है कैसे है, पहले गुड्स किसके पास होते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास, देन
होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास, एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर। ठीक है, अब हम जो कांटेक्ट कंज्यूमर किससे कांटेक्ट कर रहा है? रिटेलर से। हम कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो देयर इज़ नो लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, कि कोई भी लिंक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में नहीं होता है। सो द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेड सेगमेंट है, जो ट्रेड के थ्रू कॉमर्स, ट्रेड सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स की वजह से क्या है, हम लोग लिंक कर लेते हैं किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ट्रेडर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो भी ट्रेडर हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। कहाँ से? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। मतलब वो प्रोड्यूसर सामान लेगा और कंज्यूमर तक रीच आउट करेगा, एंड हेंस रिमूव दी हिंड्रेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड दी कॉमर्स। फिर वो क्या करेगा? वो जो भी एक बैरियर आ रहा है, हिंड्रेंस आ रहा है, वो क्या करेगा? उसको रिमूव कर देगा बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड दी कंज्यूमर। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, मतलब जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या है, वो डायरेक्टली लिंकअप नहीं होते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स होते हैं, थ्रू दी ट्रेडर्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, सो दैट देयर इज़ रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड दी कंज्यूमर। सो इसमें क्या है? कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोड्यूसर कमोडिटी तो प्रोड्यूस कर लिया, अब कंज्यूमर तक कैसे पहुँचे? क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ ओनली फॉर दी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कंज्यूमर तक ही वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचेंगे तो कोई भी वो वर्थ नहीं होगा उसका प्रोड्यूस करने का। सो डिफरेंट ट्रेडर्स के थ्रू जो ट्रेड करते हैं, गुड्स को मतलब कि एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडर यही हो गए आपके होलसेलर और रिटेलर्स, उनके थ्रू गुड्स क्या हैं? कंज्यूमर तक रीच आउट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। So goods are produced at one place, whereas consumer are scattered in the different corner of the country. Okay, जो भी गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्लेस पे प्रोड्यूस होते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं? वो स्कैटर्ड होते हैं इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। वो कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर में क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। क्या होता है? एक प्लेस का मतलब जैसे गुजरात में गुड्स प्रोड्यूस हुआ और उसको यूपी तक लेकर आना है, तो क्या है? इस प्लेस का एक गैप है। ठीक है, प्लेस गैप होता है कि गुड्स कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो भी कंज्यूमर है वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गुजरात में क्या है? गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में क्या हैं? स्कैटर्ड है। कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो ये गुड्स कैसे पहुँचेंगे? बताइए, ये गुड्स यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, वो कैसे पहुँचेंगे? थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के ही थ्रू क्या है? ये गुड्स पहुँचेंगे। तो थ्रू दी कॉमर्स क्या है? ये जो हिंड्रेंस है, प्लेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो भी रिमूव किया जा सकता है। सो सिंपल ना, क्योंकि कोई भी गुड्स क्या है? एक जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है बनारस की क्या है? बनारसी साड़ी फेमस है। अब वो क्या है? वो डिफरेंट एक्ट्रेस हैं, जो और भी कोई डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग क्या करती है? अगर यहाँ की साड़ी को ऑर्डर करती हैं। अब ये वाराणसी में जो साड़ी बनी है, अब वो मुंबई, दिल्ली और गुजरात और अलग महाराष्ट्र, अलग अलग साउथ में, ये सब कैसे पहुँचेंगी? कैसे पहुँचेंगी? थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन। या तो ट्रेन से जाएंगी, या तो फ्लाइट से जाएंगी, या तो कोई रोड के ट्रांसपोर्ट के जाएंगी। तो ये क्या है? ओनली बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सो थ्रू दी कॉमर्स इट रिमूव दी हिंड्रेंस ऑफ दी प्लेस। ये क्या करता है? जो भी हिंड्रेंस है प्लेस में, उसको भी रिमूव करता है। ओके, सो लेट्स स्टडी हियर। प्लेस आर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, वेयर एज दी कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन दी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दी कंट्री। गुड्स क्या हैं? एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गुजरात, whereas consumer are scattered in the different corners of the country। और जो कंज्यूमर है वो क्या है? डिफरेंट कॉर्नर्स कंट्री में स्कैटर्ड हैं। सो देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। तो क्या है? एक प्लेस का गैप है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। सो द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप।
तो ये जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये क्या होगा, कॉमर्स का ये जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है वो क्या करेगा, इट हेल्प इन रिमूविंग दी प्लेस गैप, जो भी प्लेस में गैप हो रहा है उसको वो क्या करेगा, रिमूव करेगा. सो द ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट विच आर ईजिली असेस्ड बाय द कंज्यूमर. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, वो गुड्स को क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे ये गुड्स क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, टू दी मार्केट विच इज़ ईजिली एक्सेस बाय दी कंज्यूमर. मार्केट तक वो गुड्स को पहुँचा देगा और कंज्यूमर क्या होंगे, उस मार्केट तक वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दस ट्रांसपोर्ट इज़ इसेंशियल फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉमर्स. ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्स का. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस फंक्शन ऑफ कॉमर्स. फर्स्टली वी हैव डिस्कस इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन. ये पर्सन का जो प्रॉब्लम है उसको करता है. नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, जो भी प्लेस की प्रॉब्लम है कि गुड्स क्या हों, कैसे पहुँचें, तो थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इट कैन रीच टू द डिफरेंट consumer which are scattered in the different areas of the country. Okay, now the next one is it helps in the removing the hindrance of the time. Okay, so some goods are produced in a particular season only but are demanded throughout the year. For example, wheat, rice, pulses. On the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season. So there is a time gap between the production and the consumption. These goods need to be kept safe and fresh during this time gap. Warehousing segment of the commerce help in removing the problem of time gap. So the goods can be kept safely in the warehouses till they are demanded in the market. Various type of warehouses are constructed and according to the requirements of goods are kept in their warehouses. For example, perishable goods are kept in the cold storage house. Inflammable goods is in fireproof warehouses, etc. Okay, next क्या है, helping removing the hindrance of the time. ये क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी टाइम का रिमूव क्या है, जो भी टाइम में हिंड्रेंस आ रहा है उसको भी रिमूव करता है. कैसे कि कुछ गुड्स, सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीज़न. ठीक है, कुछ गुड्स क्या होते हैं, सम गुड्स क्या होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक पीज़ होते हैं ना, मटर, वो क्या होते हैं, वो हर एक सीज़न में नहीं, ये विंटर में ही प्रोड्यूस हो. अब इनको क्या है, और बट इसकी डिमांड क्या होती है, वो ऑल ओवर द सीज़न होती है. हम डिमांड क्या करते हैं, हमेशा करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वीट, राइस और पल्स, अब इनका भी क्या है, खरीफ और रबी सीज़न में ही प्रोड्यूस होते हैं. सो ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर. और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो पूरे थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होते हैं बट आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीज़न. बट उनकी डिमांड क्या होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है. सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन. तो इसमें क्या है, एक टाइम गैप हो जाता है बिटवीन द गुड्स the goods are producing and the goods they are consuming by the consumer. कि गुड्स जो हैं, जो कंजप्शन और प्रोडक्शन के दोनों के बीच में एक टाइम गैप हो जाता है. सो द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ. तो गुड्स की क्या ज़रूरत है कि गुड्स को क्या करें, एक सेफ उसको रख दिया जाए. ऐसा तो है नहीं कि हम उस गुड्स को बस एट प्रेजेंट हम वीट, राइस, ये सब क्या है कि एक ही टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, तो हम जिस सीज़न में ये प्रोड्यूस होते हैं हम उसी टाइम बस वीट रोटी खाते हैं और पूरे टाइम नहीं खाते हैं, या ऐसा राइस हम तो पूरे टाइम खाते हैं. तो उसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे गुड्स को सेफली रखना पड़ता है एंड फ्रेश. इनको फ्रेश भी ड्यूरिंग द टाइम गैप. ये जो टाइम है कि जब वो प्रोड्यूस हुआ और जब वो कंज्यूम हो रहा है, इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना होता है, एज अ सेफली रखना होता है. सो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ ए कॉमर्स, जो भी सेगमेंट कॉमर्स का एक सेगमेंट है, पार्ट है वेयर हाउसिंग, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप.
ये क्या करता है, ये जो भी टाइम गैप की प्रॉब्लम है उसको रिमूव करता है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन द वेयर हाउस, जो गुड्स हैं वो सेफली क्या है वेयर हाउस में रख दिए जाते हैं टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, जब तक वो डिमांड मार्केट में नहीं किए जा रहे हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, बहुत टाइप्स के वेयर हाउसेज कंस्ट्रक्टेड होते हैं। लाइक दी कहीं पे क्या है, एक अब बिल्डिंग बना दी गई है, वहाँ पे स्टोरेज जैसे वीट और राइस को इंसेक्टिसाइड्स रख दिया गया है कि जो डिफरेंट इंसेक्ट्स उसको ना खाएं, एज वेल एज कहीं पे ऐसे हैं जो कोल्ड स्टोरेज है, जैसे पीज़ हो गया, आपके स्वीट कॉर्न्स हैं, बेबी कॉर्न हैं, ये सब क्या उनको एज अ सेफली, मशरूम है उनको सेफली रख दिया जाता है। सो द वेरियस टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड, बहुत टाइप के वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड, जैसे गुड्स की रिक्वायरमेंट है आर केप्ट इन देयर दीज वेयर हाउस, कि जिस टाइप जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर वीट है वो बहुत दूसरे सीज़न में भी चलाना है तो उसको वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस में सेफली रख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स, जो भी पेरिशेबल गुड्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पीस का, तो क्या है दे आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज, उनको कोल्ड स्टोरेज में जैसे बहुत बड़े फ्रिज फ्रीज़र में उनको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है हाउस। इनफ्लेमेबल गुड्स क्या हैं, जो भी इनफ्लेमेबल गुड्स हैं उनको क्या है फायर प्रूफ वेयर हाउस में रखा जाता है, जैसे वो वहाँ पे सेफली रहें।